Welcome to the GATE 2021 Conclave for Electronics and Communication Engineering. In this video, we will talk about the network analysis by the Mr. Kiran Kumar, control system by Hanif, and signal and system by Naveen Kumar. So, let us have the discussion on these subjects by the experts. Hi everyone, this is Kiran Kumar, faculty at MadeEasy. In this video, I will discuss about the syllabus of network analysis and I will give the brief idea about the pattern of questions. In the network analysis subject, no modifications are there. All the topics are same as the old syllabus only. But some students are expressing doubts. They are sending mails. One doubt they are asking is whether resonance topic is included or not. In the syllabus, they mentioned a steady state AC analysis, phasors, and a complex power. Here, the resonance topic is also included. They don't write the each and every subtopic elaborately. While doing the preparation, spend some time for the resonance topic also. And some students asking doubt as whether graph theory they're asking doubt about the graph theory and filters. Graph theory is required only for the ESC and for other competitive exams. It is not required for the GATE. And for electronic students, filter topic required only for the other competitive exams, not required for the GATE and as well as the ESC. Now remaining all the topics are same as the old syllabus only. And one more doubt is, if you observe the old syllabus, they include this one, driving point and transfer functions. But the new syllabus, they haven't mentioned this one, driving point and transfer functions. Here the driving point functions is a part of the two-port network only. It is not separate topic. In the syllabus, they mentioned the two-port parameters. Indirectly, all these topics also included. And in the old syllabus, they mentioned the state equations. Regarding state equations, clearly you will read in the control system subject. Don't think as this topic is removed. That means in our subject, all the topics are same as the old syllabus only. For preparation purpose, the first one is the class notes. In the class notes, each and every topic explained very clearly with help of the proper examples. With respect to theory point of view, no need to go for any other thing. Our classroom notes is more than enough. Our class notes is completely designed with respect to the competitive exams only. Now, after class notes, you have to go for the workbook questions, our previous papers. At the end, you have to go for the test series questions. If you do the analysis of the previous papers, especially in the networks, of last 5 years papers here, from this table we can conclude as every year at least they're asking the minimum 3 questions from network analysis. I am using word minimum, not maximum. In that minimum 3 questions also, one question is a 1 mark question. And 2 questions from the 2 marks questions. I am using word minimum. If you observe the recent paper, 2020 paper, 3 questions, 1 mark, and 2 questions is 2 marks. In our subject, if you put the little efforts, you can get the marks easy way. The concepts of our subject are useful for in the other subjects also. In the other subjects also use the application KVL, KCL, in the Thevenin's theorem, Norton's theorem also. Our subject is a very basic subject. Do the systematic revision.
Next, let us see the pattern of questions. Now, one pattern is a multiple choice questions. It is the same as the old syllabus only. Let us take one simple example. If you observe this example, in the question itself, potential difference A and B is given. But the potential difference is 6 volts. Potential difference A and B is 6 volts. Now correspond to first point, positive sign is given and other one is a negative sign. देखिए इधर आपको इधर वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट निकाल सकते हैं ना 6/2, करंट इज 3 एम्पियर्स. रेजिस्टेंस का नेचर क्या है? एब्जॉर्बिंग पावर. एब्जॉर्बिंग पावर बोले तो करंट इज एंटरिंग एट द पॉजिटिव टर्मिनल. करंट इज एंटरिंग एट द पॉजिटिव टर्मिनल. देखिए इधर 3 amperes current is coming here, distributed in all the branches. Now finally, what is the current here? 3 amperes. KCL का statement क्या है? Incoming current should be equal to outgoing currents. Again, if you apply KCL at this point, 2 is the incoming, 3 is also incoming. Current कितना इधर? 5 amperes. देखिए इधर wherever the current is entering, there is a positive and other one is a negative. 5 into 1, 5 volts. मगर इधर देखिए correspond to C, negative terminal is connected. Correspond to D, positive terminal is connected. Then what is the correct answer in this example? -5 volts. For this multiple choice questions, select the answer carefully because negative marking also there. Now this year they introduced the one more model of question, multiple select questions. For this one advantage is no negative marking. Now for this model of questions you can expect the memory based questions also. Let us see one example. देखिए इधर but the given circuit name is a सीरीज सर्क्यूट. देखिए इधर क्वेश्चन में वोल्टेज इक्वेशन पता है, करंट इक्वेशन पता है. नाउ यू हैव टू कंक्लूड द सर्क्यूट एलिमेंट्स. आंसर आसानी से कंक्लूड करने के लिए इफ यू डेवलप द फेजर डायग्राम विथ रेस्पेक्ट रेफरेंस वोल्टेज, इधर साइन कौन सा है? पॉजिटिव साइन. पॉजिटिव साइन बोले तो लीडिंग by 10. Now with respect to reference current, either sign कौन सा है? Negative sign. Negative sign indicate the lagging. Then what is the angle of this one? Is a 30 degrees. Angle between the V and I is a 30 degrees. With respect to voltage, current is lagging. Lagging बोल से कौन सा element? Inductor. If lagging by exactly 90, only inductor. मगर इधर देखिए एंगल कितना है इधर? less than 90 degrees. Less than 90 degrees means combination of elements. Combination of elements. Indirectly you can convert as every time one resistance also present. First option कौन सा है? RC is the incorrect answer. Come to the next one, B. Less than 90, combination of elements. It is one correct answer. इधर देखिए RLC. In case of the RLC, inductive reactance, capacitive reactance, both are they exist. If inductive reactance is the greater when compared to capacitive reactance, at that instant also, with respect to voltage, current is lagging by less than 90. It is also a possible answer. Now if you come to the LC, now correspond to LC, if you develop a phasor diagram, what is the angle between the inductor voltage, capacitor voltage? Exactly 180 degrees, opposite direction. मगर इधर एंगल कितना है इधर? less than 90 degrees. It is also incorrect. Then what are the correct answers here? B and the C. B and the C. Sometimes more than 2 options also present.
Third one. Now this is also same as the old pattern. In this one, no options are given. Simply take the fill in the blank. We have to write the corresponding numerical value. Let's take one simple example. In this example, what is our requirement is the question में क्या पूछ रहे इधर peak value of the current. क्या चाहिए आपको peak value of current. क्वेश्चन में आपको ओमेगा वैल्यू पता है. From the omega value, can you find out the respect to capacitive reactance? Minus j xc. इधर XL वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना, JXL. Find out the XL and XC values. Directly I am writing answers here. देखो एक बार XL, XC, you will get exactly same values. Minus j XC plus j XL. After that one, find out the equivalent impedance for this one. If XL, XC both are the equal, indirectly we can say as it is at resonance condition. It is come under ideal tank circuit. Ideal tank circuit. For ideal tank circuit, impedance is the infinite. Impedance is the infinite. देखिए इधर infinite बोल तो कैसे दिखा सकते हैं? Open circuit. हाँ, इधर भी same procedure repeat कर सकते हैं. इधर ओमेगा वैल्यू पता है आपको. Can you find out respect to capacitive reactance? Minus j XC. XL फाइंड आउट कर सकते हैं ना. ओमेगा वैल्यू पता है रेस्पेक्ट टू इंडक्टिव रिएक्टेंस नाउन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस नाउन. ये भी चेक करो. द मैग्नीट्यूड विल बी सेम XL एंड द XC. दैट मीन्स इट इज आल्सो आइडियल टैंक सर्क्यूट. इधर भी देखे तो इंपेडेंस ऑफ दिस वन इज द इन्फिनिट. इंपेडेंस इज द इन्फिनिट. इन्फिनिट बोल तो कैसे दिखा सकते हैं? ओपन सर्क्यूट. We can develop figure like this. Open circuit, open circuit. Now, how all the resistors are connected in the series? How all the resistors are connected in series? Question में क्या पूछ रहे हैं आपको? क्या चाहिए आपको? Peak value of the current. To get the peak value of the current, maximum current equal to maximum voltage by equivalent impedance. मैक्सिमम वोल्टेज बाई इक्विवेलेंट इंपेडेंस. क्वेश्चन में दे दिया इधर मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? इधर 10. देखिए इधर 4, 1 and 5. हाउ ऑल आर इन द सीरीज. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इधर? 10 ohms. वोल्टेज 10, रेजिस्टेंस 10. देन व्हाट करंट इक्वल टू 1 ampere. What current of this one is 1 ampere. For this model of questions, while doing the calculations, try to consider the minimum 2 decimal points. In our subject here, while doing the revision, for every question apply your own thoughts. Later concentrate on the solution. Developing your own ideas are very, very important. Reason is even though modifications are done in the exam, you can able to solve that one very confidently. Don't be very hurry in the first revision. Remember, in the first revision, you will do so many mistakes. You are doing the mistakes means you are going the correct direction only. Later from second revision, third revision onwards, the time consumption decreases. In our network analysis, each and every topic is important. Now, these are the mandatory topics. The concepts of our subjects are useful in other subjects also. You have to prepare for each and every topic. These are the mandatory topics. And many students do one common mistake. They try to refer the so many number of textbooks. They try to watch the so many number of videos. If you do like that, at the end, you cannot find the time for doing the revision. For any subject,
if you won't do the revision, you won't get the proper output. Doing the systematic revision is a very, very important for competitive exams. That's why my sincere suggestion is the first concentrate on our notes, class notes, our workbook, previous papers, and test series. These are the more than enough. Unnecessarily by referring so many other materials and referring so many books, don't waste your time. Do the systematic revision. Each and every mark is important. Wish you all the best. Thank you. Hello friends, welcome to Made Easy Conclave and myself रोहित कुमार त्रिपाठी। आज यहाँ हम लोग गेट के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सिग्नल एंड सिस्टम के सब्जेक्ट में कौन से नए टॉपिक्स ऐड हुए, कौन से पुराने टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए और फिलहाल अभी कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये सब देखने वाले हैं। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि सब्जेक्ट में जो सिलेबस हैं उस सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में ईच एंड एवरी टॉपिक में कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट एरिया है जो आपको फोकस करना चाहिए गेट के एग्ज़ाम के लिए। फिर इसके बाद ऐसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो गेट के एग्ज़ाम के पहले लास्ट 3-4 डेज़ में आपको ज़रूर देखना चाहिए और फोकस करना चाहिए। फिर MCQ, NAT और MSQ, ये जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं गेट के एग्ज़ाम में, इन्हें किस तरह हैंडल करना चाहिए। फिर इनके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे और ये भी देखेंगे कि सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, ऑन एंड एवरेज पर ईयर इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अपना बता देता हूँ। मेरा नाम रोहित कुमार त्रिपाठी है, मैं XIS हूँ और इंजीनियरिंग सर्विसेज 2008 में मैंने क्लियर किया था और कुछ PSUs भी क्लियर किए जो यहाँ पर लिखे गए हैं। जहाँ तक टीचिंग एक्सपीरियंस की बात है तो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 12 इयर्स का है और मैं मेड जी में 2010 से सिग्नल एंड सिस्टम का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो सिलेबस में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स में आपको सिग्नल क्लासिफिकेशन देखना है। सिग्नल क्लासिफिकेशन जैसे इवन ऑड सिग्नल, कंजुगेट सिमेट्रिक, कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक सिग्नल्स एंड सो ऑन। इसके बाद फिर इस टॉपिक में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है बेसिक सिग्नल। तो बेसिक सिग्नल्स फॉर एग्जांपल इम्पल्स सिग्नल, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल और इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, इम्पल्स सिग्नल और इसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन गेट के एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, तो आपको इम्पल्स के प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फोरियर सीरीज़। तो फोरियर सीरीज़ में कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ की अभी बात हो रही है। तो CTFS में जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। CTFS में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो पीरियोडिक सिग्नल के ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन से आते हैं। मतलब आपके सामने एक वेव फॉर्म गिवन होगा और उस वेव फॉर्म का ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन साइन कॉस DC के फॉर्म में लिखना होगा। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया है इस चैप्टर का वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर सीरीज़। तो फोरियर सीरीज़ के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया है वो है LTI सिस्टम से रिलेटेड। तो LTI सिस्टम का कोई पीरियोडिक इनपुट गिवन होगा और जो भी पीरियोडिक आउटपुट आएगा उसका एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट लिखना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं फोरियर सीरीज टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म में मैं बताऊं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो क्वेश्चंस गेट के एग्ज़ाम में आते हैं वो मेनली प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। असल में फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखें तो 14-15 प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ तो वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। वो हैं ड्यूलिटी, एरिया अंडर टाइम डोमेन, एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन, मल्टीप्लिकेशन इन टाइम, कन्वोल्यूशन इन टाइम, इंटीग्रेशन इन टाइम, डिफरेंशिएशन इन टाइम। तो ये जो 6-7 प्रॉपर्टीज़ मैंने बताएं इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इस टॉपिक में सैम्पलिंग सिग्नल और इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह रेक्टेंगुलर पल्स और इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं।
तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के टॉपिक में वो जो दो सिग्नल्स जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो दो सिग्नल्स हैं सैम्पलिंग फंक्शन एंड रेक्टेंगुलर पल्स। फिर इसके बाद जो सवाल आते हैं वो एक्स टी एक्स ओमेगा पेयर से रिलेटेड होते हैं। मतलब आपके सामने टाइम डोमेन सिग्नल का वेव फॉर्म होगा और आपको उस वेव फॉर्म को आइडेंटिफाई करके कि वो जो वेव फॉर्म है रियल ऑड है, इमेजिनरी ऑड है, कंजुगेट सिमेट्रिक है, कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक है, इस तरह आपको वेव फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको बताना होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सैम्पलिंग थ्योरम एंड एप्लीकेशन। तो सैम्पलिंग थ्योरम एक प्रोसेस है या फिर सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिससे कंटिन्यूअस सिग्नल डिस्क्रीट में कन्वर्ट होता है। तो सैम्पलिंग से जो रिलेटेड क्वेश्चंस गेट के एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं उनमें जो एरियाज़ हैं वो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है नेक्विस्ट रेट। सिग्नल गिवन होगा और गिवन सिग्नल का नेक्विस्ट रेट कैलकुलेट करना होगा। फिर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं अंडर सैम्पलिंग से। तो अंडर सैम्पलिंग को लोग अक्सर इग्नोर करते हैं लेकिन अंडर सैम्पलिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? साइनोसॉइडल सिग्नल के सैम्पलिंग से रिलेटेड। तो कोई साइनोसॉइडल सिग्नल गिवन होगा, सैम्पलिंग रेट गिवन होगा कि किस रेट से सैम्पल करना है, फिर जो सैम्पलर का आउटपुट आएगा उसे किसी फ़िल्टर से पास करना होगा, फिर जो फ़िल्टर का आउटपुट आएगा फ़िल्टर के आउटपुट में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे कैलकुलेशंस गेट के एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। तो जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स में देखा उसी तरह डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का क्लासिफिकेशन, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बेसिक सिग्नल्स हैं, स्टेप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल, ये सब कुछ देखना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आपने इधर जो देखा ये कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है और ये जो टॉपिक है ये डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो DTFT में डिस्क्रीट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन होता है और इस टॉपिक में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो DTFT के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आते हैं। तो याद रखना DTFT के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। लास्ट के अगर 4-5 ईयर्स में देखें तो DFT के क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो आता ही है। मतलब DFT धीरे धीरे एक इवॉल्विंग टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है गेट के एग्ज़ाम में। और DFT में भी अगर बताऊं तो DFT में जो क्वेश्चंस आते हैं वो DFT के फॉर्मूले से रिलेटेड होते हैं, इन्वर्स DFT के फॉर्मूले से रिलेटेड होते हैं और DFT के प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है Z ट्रांसफॉर्म। तो Z ट्रांसफॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सिनेरियो से बताऊं तो Z ट्रांसफॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट के 4-5 ईयर्स में आप देखें तो Z ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड हर एक साल कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। Z ट्रांसफॉर्म में अगर मैं इम्पॉर्टेंट एरिया बताऊं तो Z ट्रांसफॉर्म में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड होते हैं। तो ROC सिग्नल गिवन होगा और आपको उसके लिए कैलकुलेट करना होगा ROC। इसी तरह Z ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो Z ट्रांसफॉर्म की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और Z ट्रांसफॉर्म में एक एरिया और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन Z ट्रांसफॉर्म के टर्म्स में गिवन है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो पोल ज़ीरो प्लॉट हो सकता है या फिर सिस्टम गिवन होगा उसका डिफरेंस इक्वेशन हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंस इक्वेशन जो सिस्टम के हैं या फिर जो पोल ज़ीरो प्लॉट गिवन होगा ये सब Z ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड होंगे और इसमें भी कुछ कैलकुलेशंस आप Z ट्रांसफॉर्म के हेल्प से ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स। तो ये अभी रिसेंटली एडिड टॉपिक है। अगर इस ईयर के सिलेबस में हम लोग देखें तो ये जो टॉपिक है इंक्लूड हुआ है, मतलब प्रीवियस सिलेबस में ये नहीं था। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर ये इंक्लूड किया गया है तो ज़रूर इसकी कुछ खासियत होगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें। नेक्स्ट टॉपिक है LTI सिस्टम, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, कॉजिलिटी, स्टेबिलिटी, इम्पल्स रिस्पॉन्स, कन्वोल्यूशन, पोल्स एंड ज़ीरोज़, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, ग्रुप डिले, फेज डिले।
मतलब यहाँ सब कुछ लिख दिया गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। तो LTI सिस्टम को मैं बोलूँगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्नल एंड सिस्टम के सिनेरियो से। अगर आपको लीनियरिटी आता है, टाइम इनवेरिएंस आता है, अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आते हैं तो LTI सिस्टम में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। फिर जब LTI सिस्टम में आप पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको स्पेशली देखनी है। LTI सिस्टम के स्टेबल होने का कंडीशन, LTI सिस्टम के कॉजल होने का कंडीशन, LTI सिस्टम के स्टैटिक होने का कंडीशन। ये यहाँ नहीं लिखा गया है, लेकिन LTI सिस्टम के स्टैटिक होने के कंडीशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर LTI सिस्टम के इम्पल्स रेस्पॉन्स, ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। कन्वोल्यूशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है सिग्नल एंड सिस्टम में। तो सिग्नल पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उसमें अगर मैं बताऊं कि कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हर साल एक क्वेश्चन तो ज़रूर दिखता है, और वो ऑपरेशन कौन सा है, कन्वोल्यूशन। तो दोस्तों कन्वोल्यूशन की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ये बात अलग है कन्वोल्यूशन के क्वेश्चंस आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके बाद पोल्स एंड ज़ीरोज़, मतलब जो LTI सिस्टम है उसका पोल ज़ीरो प्लॉट, उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। फिर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का मतलब सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन। फिर ग्रुप डिले एंड फेज डिले कैलकुलेशन। तो ग्रुप डिले, फेज डिले कैलकुलेशन के जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद होने चाहिए, अलग से मेंशन किया गया है, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो अगर एडेड टॉपिक्स में देखें तो एडेड टॉपिक्स में डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। अच्छा, कुछ टॉपिक्स यहाँ मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन वो टॉपिक्स मेंशन नहीं किए गए हैं लेकिन वो फिर भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम लोग एक बार वापस से जाते हैं और इन टॉपिक्स में देखते हैं। इसमें कहीं लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़ना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे जेड ट्रांसफॉर्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसी तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लैप्लास से भी क्वेश्चंस हर साल आते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर मैं इम्पॉर्टेंट एरियाज बताऊं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, जहां आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इनिशियल कंडीशन होगा, सिस्टम का इनपुट होगा और आपको आउटपुट कैलकुलेट करना होगा। फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड, तो ROC और ROC के प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर इसके बाद लैप्लास में अगर देखें तो लैप्लास के प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए, इसमें कहीं टाइम शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग नहीं लिखा गया है। तो टाइम शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ऑपरेशंस हैं जो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि टाइम शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म में भी कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि इन ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट इन चैप्टर्स में भी है। ठीक है। फिर इसके बाद बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टीज़ इसमें मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ना है। बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में हम लोग सिग्नल का क्लासिफिकेशन देखते हैं, सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखते हैं, मतलब सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। सिस्टम लीनियर, नॉन लीनियर हो सकता है, टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट हो सकता है, कॉजल, नॉन कॉजल हो सकता है। ठीक है। सिलेबस में LTI सिस्टम मेंशन किया गया है, तो क्या बस क्या लीनियरिटी और टाइम इनवेरिएंट ही पढ़ना है? नहीं, आपको और भी कुछ चीज़ें अलग से पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे भी सवाल अक्सर आते हैं। तो लीनियरिटी और टाइम इनवेरिएंस के अलावा जो प्रॉपर्टीज़ आपको देखने हैं वो हैं स्टेबल, अनस्टेबल सिस्टम, कॉजल, नॉन कॉजल सिस्टम, स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। तो कुछ अलग से मैंने सिस्टम्स आपको बताएं, सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ बताएं जो आपको देखने हैं, भले ही वो सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, कौन से टॉपिक्स हैं जो रिमूव कर दिए गए हैं, जो आपको गेट के लिए नहीं पढ़ना है? वो यहाँ लिखे गए हैं। डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज, ये न्यू सिलेबस में नहीं है। इसी तरह फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये भी न्यू सिलेबस में नहीं है। और डिजिटल फिल्टर, तो दोस्तों DTFS, FFT एंड डिजिटल फिल्टर ये न्यू सिलेबस में नहीं है, तो आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा और ये सिलेबस में नहीं है, तो इससे नए क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। अच्छा, अब इसके बाद सिलेबस के बाद अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, मतलब कितना इम्पॉर्टेंट है ये, हर साल अप्रॉक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस आते हैं
और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप देखें तो लास्ट 5 ईयर में इसका वेटेज कितना है, 9.9 मार्क्स का, मतलब रफली 10 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल आते हैं। 10 मार्क्स का मतलब ये काफ़ी अच्छे मार्क्स हो गए गेट की सिनेरियो से, मतलब इस सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हर साल क्वेश्चन देखें तो ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो 5 to 6 क्वेश्चन हर साल आपको सिग्नल एंड सिस्टम के दिखेंगे, और जिसमें टोटल वेटेज कितना होगा, रफली 10 मार्क्स का होगा। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं MCQ, MSQ और NAT टाइप के क्वेश्चंस। हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम में इंफॉर्मेशन हम लोगों को किस तरह रीड करना है और किस तरह इसे अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले एक MCQ क्वेश्चन है, इसमें आप देखें तो x ऑफ n किस टाइप का सिग्नल है, एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल है। ठीक है, तो सिग्नल कैसा है, एब्सोल्युटली समेबल। ठीक है, इट्स z ट्रांसफॉर्म इज ए रैशनल फंक्शन विथ 2 पोल्स एंड 2 जीरोज। कितने पोल्स एंड कितने जीरोज हैं, 2 पोल्स एंड 2 जीरोज। द पोल्स आर एट z इक्वल टू +-2। पोल लोकेशन किधर है, +-2 पर। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चेक करना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। दोस्तों ये MCQ है, तो इसमें कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले सिग्नल का नेचर एब्सोल्युटली समेबल है। अब Z ट्रांसफॉर्म की ROC की प्रॉपर्टी है कि अगर सिग्नल एब्सोल्युटली समेबल होगा तो ROC में क्या लाई करना चाहिए, यूनिट सर्किल। तो इस वाले सेंटेंस से आप एक पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं, वो कंक्लूजन क्या है, ROC शुड इंक्लूड यूनिट सर्किल। ROC शुड इंक्लूड यूनिट सर्किल। ठीक है, अब इसके बाद Z ट्रांसफॉर्म में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑलवेज पोल के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पोल कहाँ पर है, +-2 पर, तो पोल का मैग्नीट्यूड क्या, 2। तो ROC किससे रिलेटेड होगा, 2 से रिलेटेड होगा। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ है, ROC या तो आप लिखोगे mod z <2 मतलब सर्किल के इनसाइड, या फिर लिखोगे mod z <2 मतलब सर्किल के आउटसाइड। हम लोगों को चेक करना है कि आउट ऑफ दिस 2 ROCs कौन सा ROC सेलेक्ट करना है। वो कैसे पता चलेगा, ये जो यहाँ लिखा गया है, इधर कंडीशन क्या है, ROC शुड इंक्लूड यूनिट सर्किल, इसका मतलब अब एक ही पॉसिबिलिटी है, ROC आप लिखोगे mod z <2। तो एक रिजल्ट हम लोगों ने देखा कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस mod z <2 होना चाहिए, क्योंकि ROC अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँगा तो इसमें यूनिट सर्किल इंक्लूड हो जाएगा। यूनिट सर्किल इंक्लूड होने का मैथमेटिकल मीनिंग है mod z = 1 इंक्लूड होना चाहिए, और यहाँ mod z = 1 इंक्लूड हो रहा है। तो ROC हमें मिल गया, ROC सर्किल के इनसाइड है। अच्छा, अब ROC की सेकेंड प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ROC की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ROC इज इनसाइड सर्किल देन सिग्नल विल बी लेफ्ट साइडेड। तो अगर ROC सर्किल के इनसाइड है तो सिग्नल कैसा होगा, लेफ्ट साइडेड होगा। अब यहाँ से ये क्लियर है, सिग्नल का नेचर x ऑफ n ये कैसा होगा, लेफ्ट साइडेड होगा। xn का नेचर कैसा होगा, लेफ्ट साइडेड होगा। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में वही पॉइंट्स लिखे गए हैं जो मैंने आपको अभी बताया। यहाँ सिग्नल का नेचर कैसा है, लेफ्ट साइडेड, और लेफ्ट साइड सिग्नल का मैथमेटिकल मीनिंग है सिग्नल xn विल बी नॉन ज़ीरो फॉर n<0। तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल के सैंपल्स LHS में नॉन ज़ीरो आएंगे। अच्छा, कॉजल सिग्नल होने का कंडीशन क्या है, फॉर कॉजल सिग्नल xn शुड बी 0 फॉर n<0। तो कॉजल सिग्नल के सैंपल्स LHS में कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए, और यहाँ पर LHS में सैंपल्स नॉन ज़ीरो आए, मतलब सिग्नल कॉजल टाइप का नहीं है, तो सिग्नल कैसा है, नॉन कॉजल है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, सिग्नल इज़ नॉन कॉजल। तो फिर अगर हम लोग देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन बी तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि नॉन कॉजल टाइप का सिग्नल है तो कॉजल है नहीं।
फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल हो नहीं सकता है, क्योंकि फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल का फाइनाइट पोल नहीं होता है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइनाइट पोल, तो फाइनाइट सिग्नल हो नहीं सकता है, मतलब ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है। और पीरियोडिक सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जब पीरियोडिक सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं है। तो आंसर दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन सी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन एमएसक्यू टाइप का है। तो एमएसक्यू में एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, एक्स ऑफ टी इज़ रियल एज वेल एज ऑड। तो एक्स ऑफ टी का नेचर कैसा है, रियल ऑड। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ 4 ऑप्शंस यहाँ गिवन है। एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है, एक्स ऑफ ओमेगा है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको मालूम होनी चाहिए वो क्या है, फॉर एनी रियल ऑड सिग्नल फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी इमेजिनरी ऑड। तो आपको एक्स टी एक्स ओमेगा पेयर्स मालूम होने चाहिए। एक्स टी एक्स ओमेगा पेयर्स में हमें गिवन सिग्नल के लिए ये पहले से मालूम होता है जो फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा एटलीस्ट उसका नेचर कैसा होगा। तो यहाँ जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा इसका नेचर कैसा होगा, इमेजिनरी ऑड। तो ये मैंने क्या लिखा है, इमेजिनरी एंड ऑड। अब अगर आप देखें तो कौन कौन से ऑप्शंस मैच हो रहे हैं। ऑप्शन बी क्या है, एक्स ओमेगा इज इमेजिनरी ऑड, मतलब ऑप्शन बी तो होगा ही। अब आप ये बताओ, अगर एक्स ओमेगा इमेजिनरी है तो एक्स ओमेगा का रियल पार्ट कितना है, 0। तो एक्स ओमेगा का रियल पार्ट कितना, 0। इसका मतलब ऑप्शन ए भी क्या है, ऑप्शन ए भी क्या है, करेक्ट है। फिर ऑप्शन सी को आप देखें, एरिया ऑफ एक्स ओमेगा इक्वल टू 0। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये एक्स ओमेगा का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया। तो एक्स ओमेगा का एरिया 0 है, ये इस ऑप्शन में लिखा गया है। आप इसे चेक करो तो एक्स ओमेगा का नेचर कैसा आया, ऑड। एंड फॉर एनी ऑड सिग्नल, फॉर एनी ऑड सिग्नल, फॉर एनी ऑड सिग्नल एरिया विल बी 0। तो ये ऑड सिग्नल की प्रॉपर्टी है, जितने भी ऑड सिग्नल्स हैं सबका एरिया कितना होता है, 0। और अगर एक्स ओमेगा ऑड सिग्नल है तो एक्स ओमेगा का एरिया कितना होगा, 0। इसका मतलब इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट एक्स ओमेगा डी ओमेगा ये कितना होगा, 0। मतलब ऑप्शन सी भी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्स ऑफ ओमेगा इमेजिनरी और ऑड है। और अगर इमेजिनरी है मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट नॉन ज़ीरो है। और ऑप्शन डी में क्या लिखा गया है, इमेजिनरी पार्ट इज 0, मतलब ऑप्शन डी क्या है, रॉन्ग है। तो दोस्तों कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए, बी एंड सी। तो ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे एमएसक्यू में, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से जज किया जाएगा, उसका लेवल चेक किया जाएगा कि आप डिटेल में वो कॉन्सेप्ट जानते हो या नहीं। तो एमएसक्यू में अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे, तो इसको आपको स्पेशली अच्छी तरह से हैंडल करना है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो एनईटी का एक एग्जांपल आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ ए कॉजल एलटीआई सिस्टम। तो दोस्तों सिस्टम कैसा है, कॉजल एलटीआई। तो आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किया, सिस्टम इज कॉजल एलटीआई। कंटिन्यू कीजिए, ट्रांसफ़र फंक्शन इज 1/s। सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, 1/s। अच्छा, अगर किसी सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन 1/s है तो वो सिस्टम है इंटीग्रेटर। तो 1/s ट्रांसफ़र फंक्शन किस सिस्टम का होता है, इंटीग्रेटर का। तो यहाँ पर सिस्टम का नेचर मैं लिख देता हूँ, सिस्टम इज इंटीग्रेटर। तो आपने नेचर चेक किया, सिस्टम कौन सा है, इंटीग्रेटर है। फिर इसके बाद इफ़ द इनपुट टू द सिस्टम इज x ऑफ t इक्वल टू साइन टी अपॉन पाई टी। तो सिस्टम का इनपुट गिवन है into ut, where ut is a unit step signal. The system output yt at equals to infinite. तो हमें आउटपुट yt कैलकुलेट करना है t टेंस टू इन्फानाइट के साथ, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं।
सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या मेंशन था, 1/s। तो ये सिस्टम क्या है, इंटीग्रेटर। इनपुट गिवन था और सिस्टम का आउटपुट t इक्वल टू इन्फानाइट पर कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया अगर ये इंटीग्रेटर है तो इंटीग्रेटर में इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इस फॉर्म में लिखते हैं। तो आपको इनपुट को इंटीग्रेट करना होगा माइनस इन्फानाइट से कहाँ तक, t तक। तो क्या मिलेगा, आउटपुट। ठीक है, अब एक्स टाउ को यहाँ पुट कर देता हूँ। एक्स टी गिवन है तो एक्स टी में t की जगह क्या लिखना है, टाउ। तो वो हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया। अच्छा, स्टेप सिग्नल स्टार्ट कहाँ से होता है, टाउ इक्वल टू 0 से। तो ये जो रेंज आपने लिखा है माइनस इन्फानाइट टू टी, ये रेंज किसका है, टाउ का रेंज है। और यू टाउ कहाँ से स्टार्ट होगा, टाउ इक्वल टू 0 से। तो इसलिए इंटीग्रेशन का रेंज 0 से कहाँ तक लिखा गया है, टी तक। अब टाउ ग्रेटर देन 0 के लिए स्टेप सिग्नल कितना होता है, 1। तो टाउ ग्रेटर देन 0 के लिए इंटीग्रेशन में ये नया रेंज होगा और इस रेंज में यू टाउ की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, फिर इसमें t का वैल्यू क्या पुट करना है, इन्फानाइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इसी में हम लोगों ने क्या किया कि इसी में t को क्या पुट कर दिया, इन्फानाइट। एक बार फिर से आप देखिए, बाई टी यहाँ लिखा गया है, इसमें अपर लिमिट क्या है, t। तो जब आप y ऑफ इन्फानाइट लिखेंगे तो अपर लिमिट t को आपको क्या पुट करना होगा, इन्फानाइट। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखें तो वाई टी टी इक्वल टू इन्फानाइट पर कैलकुलेट करना है। तो आप इधर देखो अपर लिमिट क्या है, t। तो इस t को बस केवल किससे रिप्लेस कर दो, इन्फानाइट से। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने t को किससे रिप्लेस कर दिया है, इन्फानाइट से। अब कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल बनाते हैं कुछ इस तरह। इसे आप इस फॉर्म में लिखो, 1/π इंटू एरिया ऑफ सैम्पलिंग टाउ डिवाइडेड बाय 2। ये तो लिखा गया। अच्छा, सैम्पलिंग टाउ फंक्शन क्या है, ये जो लिखा गया है, साइन टाउ अपॉन टाउ, ये किसके इक्वल होता है, सैम्पलिंग टाउ के। सैम्पलिंग टाउ बेसिक सिग्नल्स का एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स हैं। तो जब आप सैम्पलिंग टाउ के प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे तो उसमें आप ये भी देखोगे सैम्पलिंग टाउ फंक्शन का एरिया कितना होता है, पाई। तो पहले एक पॉइंट आप देख लीजिए, वो पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ सैम्पलिंग टाउ, इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई। ठीक है। अच्छा, आप इंटीग्रेशन का रेंज 0 से इन्फानाइट तक है, तो ये सैम्पलिंग टाउ के एरिया का हाफ है। अगर मैं माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट रेंज पर इंटीग्रेट करूं तो मैं सैम्पलिंग टाउ का फुल एरिया कैलकुलेट करूंगा। यहाँ इंटीग्रेशन का रेंज क्या है, 0 टू इन्फानाइट। तो ये सैम्पलिंग टाउ के एरिया का क्या है, हाफ। इसलिए अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, एरिया ऑफ सैम्पलिंग टाउ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब एरिया ऑफ सैम्पलिंग टाउ हम लोगों ने देखा कितना है, पाई। तो अब आप ये जो टर्म है इस टर्म को किससे रिप्लेस कर दो, पाई से। तो सैम्पलिंग टाउ का ये जो एरिया लिखना है इसे आप क्या लिख दोगे, पाई। अब पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल आउट। तो आंसर कितना आएगा, 1/2। ठीक है। तो आपको ये वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं करना पड़े, क्योंकि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी, इसलिए अच्छा है सैम्पलिंग टाउ का एरिया याद रखो। सैम्पलिंग टाउ का एरिया कितना होता है, पाई। और यहाँ पर मुझे सैम्पलिंग टाउ के एरिया को हाफ करना था, तो मैं क्या लिखता, π/2। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता, तो आंसर कितना मिलता, 0.5। ठीक है। अब इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग देखते हैं। आखिर वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो गेट के एग्ज़ाम के पहले लास्ट 3 डेज़ में मेनली फोकस करने चाहिए, मतलब जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हो। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेड ट्रांसफॉर्म। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी से आते हैं, हर साल एक क्वेश्चन जरूर जेड ट्रांसफॉर्म से दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक है लैप्लास। नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टी। अब देखिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टी ये सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिना इसके सिग्नल एंड सिस्टम अधूरा है, इनकम्प्लीट है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको करना है।
इम्पॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज आरएमएस टाइम पीरियड कैलकुलेशन। तो जब आप कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स ऐसे चैप्टर्स देखेंगे तो उसमें एवरेज कैलकुलेशन मैं डिस्कस करूँगा, आरएमएस कैलकुलेशन, टाइम पीरियड कैलकुलेशन भी डिस्कस करूँगा। तो एवरेज, आरएमएस, टाइम पीरियड कैलकुलेशन, इनमें से किसी से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डीएफटी। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। डीएफटी ईयर बाय ईयर इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, इसलिए अब इससे हर साल एक क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको लास्ट 3-4 डेज में स्पेशली फोकस करने चाहिए और आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके बाद अच्छा, तो दोस्तों सिग्नल सिस्टम में बस केवल इतना ही। मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, सिलेबस में क्या है, कौन से टॉपिक्स रिमूव किए गए, कौन से टॉपिक्स ऐड किए गए, अभी प्रेजेंट सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, फिर इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। Hello everyone, I am Naveen Kumar, having 15 years of teaching experience in GATE and ESC, working since 7 years in MEDIZI for GATE and ESC. Next one, the important topics of signals and system. So the first one is LTI system, where we can going to be getting the questions based on the convolution. Okay, on that we can get the important questions will be obtained from properties. And also from eigenvalues and eigenvectors also we can get the questions. So next one is Fourier series. Both continuous time Fourier series and discrete time Fourier series are important. They are going to be asking the questions in CTFS and DTFS. So next topic is the Fourier transform. In Fourier transform also, so in both continuous time Fourier transform and discrete time Fourier transform are equally important for the GATE 2021. After that we see about the Laplace transform. So by solving very easily in your transformation techniques for system analysis, we always consider the Laplace transform. That the Laplace transform is also a very important topic. So we concentrate on both the bilateral Laplace transform and unilateral Laplace transform. Both will be concentrated in the Laplace transform. After that we will see about the next topic is jet transform, which is also equally important in a discrete time domain. So the next one is DFT. So about the DFT, discrete Fourier transform, it's also equally important. So for the last 5 years, if you see the weightage, that is for the last 5 years, if you are going to be find out the weightage. So for your signals and system topic, for the 5 years we are going to be seeing. In 2016, they are asking 4 1-mark questions and 4 2-mark questions are asked in 2016. And in set 2, they asked 1-mark question and 2-mark questions are going to be asked in set 2 in 2016. And in 2017, so they asked 3 questions in as 1-mark questions in set 1 and 4 questions of 2 marks in set 1. So if you see that in set 2, the 1-mark questions is 2 1-mark questions they asked and 4 2-mark questions are asked from set 2 in 2017. So in 2018, they asked 3 1-mark questions and about the 3 2-mark questions are asked in 2018 from the set 1, because you have only one set is present. And 2019 we are having 3 questions are asked as 1 mark and 3 questions are asked as 2 marks we have. So in 2020, that is last year GATE exam, they asked 2 1-mark questions and 4 2-mark questions are asked. So on an average, so if you see the 5 years average weightage marks, the average weightage marks we are having is 10 marks is present for this subject. So I request the students that don't check the weightage and decide the subject, okay, because each and every subject is very very important in the GATE exam. If you are going to be leaving 1 or 2 subjects and preparing for the remaining subjects because weightage is less, it is not predictable such that the weightage will going to be always present like this only. Sometimes they can ask more questions from the subject also.
So that's why you can study all the subjects, give equal importance to all the subjects. Every subject in GATE is equally important. So that is about the weightage. So if you see the 5 years average weightage marks is going to be 10 marks we have. So next one is, if you see about the question, that is pattern of questions. In the pattern of questions, we have 3 types of patterns are there. The first one is multiple choice questions, MCQs. If you talk about the MCQs, each question carries 1 or 2 marks. So 1 mark question or 2 marks questions will be consists of MCQs. So multiple choice questions will have 4 options. Out of that 4 options, 1 option is going to be correct. So we need to select that 1 option which is going to be correct. Okay, for a wrong answer or for a wrong selection, for the wrong multiple choice you are going to be taking for the wrong choice, the first thing is we are having the negative marking. So wrong answer in MCQ, okay, there will be 1/3 negative marking is present. So while selecting the questions you must be very careful such that so your choice will be going to be always be the right choice. Okay, so next pattern of question is, it is multiple selection questions. Multiple selection questions are very new to the GATE exam. They added recently this one in GATE 2021. In multiple selection questions, it is also going to be having each question carries 1 or 2 marks and they are objective type questions. So mostly the questions that come from this one are of theoretical in nature. They can ask numericals also, but mostly they are going to be in theoretical nature, like the statement wise questions will be obtained. And from that we will select the answer. So your selection must be going to be having, out of the 4 multiple choices, there will be more than 2 answers will be correct. So the 2 answers which are going to be correct, okay, so more than 2 answers are correct, and that will be going to be selected by you. Even though out of 2 answers, if you select only 1 and the remaining one is not selected by you, then it is not considered to be as the correct one. So there is no partial marking is present. If 2 answers are there, means you need to select the 2 answers out of that the question in multiple selection questions. Okay, out of the 4 options. Now next one is, one important thing is there is no negative marking. That is the very big relief for the students, that there is no negative marking. Even you cannot know about the remaining selection of question, remaining answers, but you know one answer is to be known to you. So they are not having any negative marking. Okay, so next type of question is numerical answer type questions. If you talk about the numerical answer type question, here also each question carries 1 or 2 marks. Okay, so NITs are mostly calculation based questions. Okay, they are mostly calculation based question. So where answer is going to be provided in the given space, you can specify the units, in which units it is present, that the units you have to observe, and you can also give the decimal points up to which decimal we need to put the answer, and you also give the range of that solution answer, decimal range will be given. So your answer must be within that permissible range, has to be present. So all these things you must be observed when we are going for the numerical answer type questions. So next one is, for every wrong answer in NIT there is no negative marking. This is also be the advantage for the students, such that there is not having any negative marking is present. Hello everyone, welcome to MadeEasy Prime and welcome to GATE 2021 Conclave. Myself Hanif, and I've been working at MadeEasy since past 9 years and having a total teaching experience of 17 years in the field of engineering and in the field of teaching, particularly in competitive exams and all those. But I'm here today particularly to discuss the changes that happened in the GATE 2021 compared to that of the earlier GATE 2020 in terms of syllabus and in terms of the question pattern. So majorly the changes are of 2 types. One is syllabus changes, the other is changes in the question pattern. So let's have a brief discussion of both. Coming to the syllabus of control system, which I deal in MadeEasy for EC and electrical students,
I hardly find any changes in the syllabus. The syllabus contents almost remains the same. Some of them are not mentioned, but that doesn't mean that they are not there. Without that, you can't feel the subject to be complete and perfect, right? So some topics, they will not be mentioned but need to be understood. Like, here the syllabus contents happens to be the transfer function modeling, block diagram, signal flow graph, transient and steady state response analysis, and stability analysis using Routh-Hurwitz criteria, and root locus techniques, frequency response analysis, Nyquist criteria, stability criteria, and board plot and state modeling. These are the major contents that we see, and certain things which does exist in the syllabus, like a topic that links two topics. Of course, those things will be not mentioned clearly, but of course we will have to discuss all of them. But this happens to be the major topics. So as you can see, compared to that of GATE 2020, we hardly have any changes. Basics of control system, other basic components of control system, of course that will always be there. So that don't think like an added up. So that will be part of the discussion. So some topics, it will be mentioned particularly, some will not be mentioned, but we need to discuss all of them to balance the subject. Coming to weightage of control systems in the GATE exam, taking the last 5 years of the data, as you can see that in both the sets, of course any one set that would be enough. So a minimum of 8 marks to a maximum of 12 marks is seen, 11 to 12 marks. So an average from the past 5 years, if I take up out of the 75 technical, 70 technical, so you will be getting around 8.2, right? So 8 to 9 marks is what is the average. So least being 8 and highest being 11 to 12. A very good weightage of control systems, and very scoring. So control system is time saving as well as scoring. So it helps students in two ways in exam. So you can improve your rank better through this subject. So that's about the question, weightage of it. Now coming to the type of questions. So earlier there used to be two type of questions. One was MCQ, multiple choice question. The other was numerical data type of questions, or numerical data type questions, NHT we call it to be, and MCQ we call it to be. Now this time one more type of question is added, like MSQ type of questions, where you will have more than one answer for the question given. So in case of MCQ questions, you will have only one answer out of 4 question and 4 options, only one is correct, and you need to select that. It may be theory based question, it may be value based question, calculation based question, but MCQ means one question, 4 options, one is correct. Whereas the numerical data type question, you will be given with a question, and there will be a blank which you need to fill with a numeric value, right? You cannot write any words, you need to fill with a numeric value, and of course we are aware of these things because they were there earlier. The third type of question, what we need to learn newly, is one question having more than one option as the answer. So as a matter of example, to enlighten you about this, to make you aware of these things, I have got few questions here. One about MCQ, one about MCQ, and one about the numerical data type of question. So let's have this. Let's have a look at this MCQ question, wherein I have taken the impulse response of a system, and the question is to find the open loop transfer function. It's just a model to be discussed. So that I can take up any question. Impulse response is given, and I'm asked to find the open loop transfer function. See, the solution is 4 options are given. You see the solution. We know that transfer function of a system is a Laplace transform of impulse response, but the transfer function we obtain is a closed loop transfer function by default. But the question asks us to find open loop transfer function. So what to do? There are two ways. One, you can cross multiply a bit lengthy procedure, but we at MadeEasy deal in a shortcut way. What is that? Okay, if you have closed loop transfer function, if you want to obtain open loop transfer function in case of unity negative feedback cases, then you can do like this: numerator upon denominator minus numerator. You will directly arrive at the answer rather than cross multiplying and simplifying those equations. That can also be done, but this is much easy way. So answer being option B, that is 2s plus 1 upon s square is what you get. So that is an MCQ question we are all familiar with. Now coming to the MSQ type of question, I have got a sample question over here. What is given? A system is described by means of set of linear algebraic equations. As you can see here, x is equals to ey, etc. The set of equations are given. Question is to find the ratio of z and x variables. Z by x is to be found. And we have got 4 options, A, B, C, D. Sir, what is the answer to this? So, to solve this, coming to the solution part, to solve this, there are 2 ways. One is by simplifying this set of equations, the other is by going for the Mason formula and then use going for the signal flow graph and use Mason formula.
See, if signal flow graph is given, then applying Mason formula will be in recommended one. But when equations are given and that too few in number, so it will be waste of time to transform them into signal flow graph and then again use Mason formula. We can think of simplifying these equations itself. Like I am trying to simplify that you substitute equation 2 in equation 3 and then simplify that, you will get the ratio of Z by X as you find in option A. But if you substitute this equation 2 in equation 1 and then simplify, you will get Z by X as what you find in option B. And then if you substitute equation 1 by modifying it as x is equals to Ey as y is equals to x by E and substitute in equation 3 and simplify, you will get that Z by X as you find in option C. Option D, of course, you will not get it anywhere. So this question has got 3 answers. A is answer, B is answer, C is answer. Multiple selections you have got for this question. That is an MSQ type of question, right? So, but then sir, this Z by X, you might be thinking like, so conceptually you have to be very strong. So we at MadeEasy, we provide you the in-depth concept of everything. So here this Z by X, sir, why it is not unique? We know that transfer function has to be unique. No doubt transfer function has to be unique, but this Z by X, what you are trying to find here is not transfer function. That's why it is not unique. So x, y, z are variables of the system and ratio of any two variables is not transfer function. Hence it need not be unique. So such ratios can have more than one possible answer, right? That's what it is. Now coming to this numerical data type of question. So here I have taken a signal flow graph and we are asked to find the transfer function C by R. 2 ways to answer. One is using Mason formula. See the total number of forward paths, you count them, you will find them to be 9, each have gained 1. There is no loop at all. And hence the determinant of the forward path and determinant of the signal flow graph will become simply 1. So Mason formula now shrinks to simply sum of all the forward path gains, which is 1 added 9 times, so 9. That's more lengthy. See, the shortcut way of dealing things. Sir, is there any shortcut? So wherever possible, we at MadeEasy, we try to emphasize and tell all those shortcuts so that it saves your time and efforts. So what is the shortcut for this type of question, sir? You see that these 3 branches are in parallel with each other. So add up them, 3. Those 3 branches are also parallel with each other. Add up them, 3. This and that are in series. 3 into 3, 9. That's much more simple, right? So, I mean, these are sample questions so that you get an understanding that the topics important for GATE examination as well as for the ES examination, particularly for the GATE examination, are transfer function modeling and RH criteria, Routh-Hurwitz stability criteria, root locus technique, Nyquist plot, Nyquist criteria, board plot, state modeling. This happens to be the topics where questions appears most frequently. They appear even from other topics, but most importantly, with great probability, questions are seen from this topic. So that's about this GATE Conclave 2021 in this little amount of time. Thank you for watching. Join MadeEasy, the best institute for GATE, ES and PSUs for your bright career and to fulfill your dreams. Wish you good luck.